Hello everyone, students. Today we are going to discuss the chapter Children at Work from your supplementary reader book. And this chapter, the story gives us picture of children who are bound to work to support not only their families but to themselves. They cannot go to school, they can't play like other children. So the story draws our attention to the evil of the child labor. And here is an account of a boy, Velu, how he earned money to survive in this world and to help his parents. But when he sees the torture of his father, because his father was a drunkard and he used to beat him and take all the money, whatever he earned throughout the day. So he thought that it is intolerable now. He couldn't tolerate that and he ran away from his house to Chennai. And when he reached Chennai, he found that the new city was totally strange for him. He didn't know where he has to go, what he has to do, and how he has to survive in this new city, because it was totally different from his village area, rural area. In village area, he used to do labor work in the fields of jamidars, but here he doesn't find any work. And there he met with a girl, and that girl supported him to find his work, to find his earnings. She was a rag picker. She used to pick the bottles, papers, newspapers, and sold them in Jam Bazaar Jaggu, and earned his money to survive. She told the Velu that he has to do this work for some time, because here he will not find any farm work, because in cities there are not farms anywhere. So he has to do this work. So this shows that how the children are very helpless to do such type of works. They are unable to go to schools, they are unable to get education, and how they survive in these big cities. Now I will give you a brief description of this chapter. Here is a boy named Velu, who is 11 years old, who runs away from his home, and he boarded into a train to Chennai without a ticket. He was very tired and hungry, and when he reached on the station, he was feeling very hungry because he had not eaten anything from 2 days. When he ran from his house, he just had some peanuts and jaggery, which he ate on the way. But now he was very hungry, so and he didn't know where he has to go, and he was very sad there. Then a girl comes to him. That girl was a rag picker, and she asked Velu that from where he has come here, and what he is waiting there. But Velu was very hesitant to tell him and to tell her about his identity, because she was a stranger for him. But he was also helpless because he wanted some food, he wanted some work to survive there in this new city. And he followed the girl because she said that I will provide you some food if you will follow me, and he didn't have any other option, so he followed the girl.
यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि वेलू जो कि एक 11 साल का लड़का है और वो अपने फादर की जो है ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से और उसके टॉर्चर की वजह से, जो डेली उसकी पिटाई होती थी, उस वजह से अपने घर को छोड़ करके भाग जाता है और वो चेन्नई सेंट्रल जो है ट्रेन में बोर्ड वहाँ पर बैठ जाता है और चेन्नई सेंट्रल में जो है स्टेशन पर उतरता है। तो बहुत ज़्यादा भूखा था 2 दिन से और उसको पता भी नहीं था कि इस बड़े शहर में कहाँ जाना है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड थी, जो कि उसने पहली बार अपनी लाइफ में देखी थी। अब वो वहाँ पर जब बैठा हुआ था तो एक लड़की आती है जो कि अपने साथ एक बड़ा सा सैक लेके आई थी, बोरा लेके आई थी और वो उससे जो है बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन जो है वेलू उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता है क्योंकि वो जो है उसको स्ट्रेंज समझता है और उसको जो है ये सब बातें उसके साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब लड़की ने उससे कहा कि अगर तुम्हें भूख लगी है और तुम्हें कुछ खाना है तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अब वेलू जो है हेल्पलेस था, उसको जो है उस लड़की के साथ जाना ही पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल भूखा था। अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म but he felt as if he was still on a moving train. Why? So students, वेलू जो है एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ था। उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि वो अभी भी जो है एक मूविंग ट्रेन में है, एक चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ है, क्योंकि जो है वेलू Velu stood on a platform, but he felt as if he was still on a moving train because his legs were still wobbly and shaky after the journey to the Chennai. उसकी जो है टांगें बिल्कुल ऐसी सुन्न हो गई थी, ऐसे लड़खड़ा रही थी क्योंकि जो है लंबे टाइम से वो जो है यात्रा कर रहा था और उसको अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे वो ट्रेन में है। What made him feel miserable? उसको जो है मिजरेबल क्यों फील हुआ? क्योंकि वेलू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री। वेलू जो है अकेला था, टायर्ड था और भूखा भी था। एंड ही डिडंट हैव एनी टिकट ऑल्सो, सो ही फेल्ट मिजरेबल। उसके पास कोई टिकट भी नहीं थी और इसीलिए वो जो है मिजरेबल महसूस करता है। वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई? वेलू जो है बिना एक टिकट के ट्रैवलिंग कर रहा था। क्यों? Because he didn't have money to buy any ticket, so he was traveling without a ticket. How did he escape the ticket collector's attention? वो टिकट कलेक्टर के अटेंशन से जो है कैसे बच पाता है? Velu traveled without a ticket because he had no money to buy a ticket. He escaped the ticket collector's attention because the ticket collector didn't come to the अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया, इसी वजह से जो है वो बच जाता है। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम? वेलू जो है घर से क्यों भागा था? वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम एवरी डे. हिज फादर वुड ऑल्सो स्पेंड द मनी अर्नड बाई वेलू एंड हिज सिस्टर ऑन ड्रिंकिंग. वेलू को जो है वो डेली पिटाई जो है करता था उसकी, वो एक ड्रंकर्ड था और जो भी वेलू और उसकी बहन पूरा दिन कमाते थे वो सब उनसे जो है छीन करके जो है अपने पीने के लिए जो है ख़त्म कर देता था। तो इसी वजह से जो है वेलू अपना घर छोड़ करके भाग जाता है। वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? वो जो है स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करने का डिसाइड क्यों करता है? Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl offered and promised him to get food for him. वेलू जो है बहुत ज़्यादा भूखा था और लड़की जो है उसको ऑफ़र करती है और प्रॉमिस भी करती है कि वो उसको जो है खाना दिलाएगी, तो वो उसको फॉलो करता है।
अब हमारी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें हमें किसके बारे में पता चलेगा कि वेलू ने जो है पहली बार इतनी क्राउडेड स्ट्रीट्स को देखा था, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को देखा था, और फिर जब वो बिल्डिंग के पीछे जाता है तो उसको एक बड़ा सा गार्बेज बिन भी दिखाई देता है। वेलू जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। लड़की जो उसको उस बड़े से गार्बेज बिन के पास लेकर के जाती है और इसी वजह से जो है वेलू हैरान था कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। He didn't want to go there, but he was helpless. When the girl takes him to the garbage bin, he asks her that why they came here, why did they come here, and the girl told him that we will search our food in this garbage bin, we will take the leftovers, हम जो है बचा खुचा खाना लोगों का जो है यहाँ से लेंगे एंड फिल आवर स्टमक, और अपना पेट भरेंगे। एंड द गर्ल फाउंड वन बनाना, टू बनानाज, one squeezed banana and a vada. He gave a banana and a vada to the boy to eat, and one banana she ate herself. एक बनाना और एक वड़ा जो है उसने उस लड़के को दे दिया और एक बनाना जो है उसने खुद खा लिया, बिकॉज शी herself was very hungry. वो अपने आप भी जो है बहुत ज़्यादा भूखी थी. So it is there is a miserable condition of the children who work throughout the day, who labor throughout the day, and how they fill their stomach when they are hungry. So this is very miserable, this is very complicated situation shown in this chapter. Velu said to the girl that he will not do this work, this rag picking work. When he sees the living area of that girl, he feels very ugly there, and he says that I will not do this work, but when I will get a good work to do this in the city, I will leave this work. So we will come to the questions now. कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो? क्या वेलू जो है तमिल और इंग्लिश बोल सकता था, पढ़ सकता था, आपको कैसे पता है? वेलू couldn't read sign boards in English, but he read the Tamil sign on the central jail. वेलू जो है वो इंग्लिश के साइन बोर्ड्स को बिल्कुल नहीं पढ़ पाया रास्ते में, लेकिन उसने तमिल का जो साइन बोर्ड था सेंट्रल जेल पर उसको पढ़ लिया था. तो हमें पता चल जाता है कि वेलू जो है तमिल पढ़ सकता था, इंग्लिश नहीं. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल you will soon be counting bars there, the girl said. What is she referring to? लड़की जो है उससे क्या कहती है कि तुम अगर सावधान नहीं रहोगे तो वहाँ पर जो है सलाखें गिन रहे होगे. वो ऐसा क्यों कहती है वेलू को? शी वॉज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल. वो जो है सेंट्रल जेल की तरफ इशारा करके कह रही थी कि अगर यहाँ पर इस शहर में सावधानी से नहीं रहे तो तुम्हें जेल में जाना पड़ सकता है. थ्रू दीज लाइन्स शी वॉन्टेड टू अलर्ट हिम नॉट टू डू एनी मिस्टेक एंड स्टूपिडिटी एंड गेट कॉट बाय द पुलिसमैन. कि कोई भी जो है स्टूपिडिटी ना करे और पुलिस वालों के हाथ ना आए. Next is, what does she mean when she says if you are not careful? Leave this. Where did the girl lead Velu to? वेलू को कहाँ लेकर के जाती है? The girl led Velu to a marriage hall. वो उसको एक मैरिज हॉल लेकर के जाती है जहाँ पर जो वेलू बड़ा खुश हो जाता है कि उसको जो है वो इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा. बट जब उसको सच्चाई का पता चलता है कि दे विल ईट द लेफ्ट ओवर ऑफ दीज पीपल, देन ही वॉज वेरी सैड. जब उसको पता चलता है कि वो इनका बचा खुचा खाना खाएगा तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है. व्हाट डिड दे गेट टू ईट? उनको जो है खाने के लिए क्या मिला? दे गोट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन. उनको गार्बेज बिन से कुछ खाना मिलता है. द गर्ल फाउंड वन स्क्वैश्ड बनाना एंड वड़ा फॉर वेलू. लड़की को जो है एक स्क्वैश्ड
बनाना मिलता है और एक वड़ा जो है वेलू के लिए। लेटर ऑन शी फाउंड वन मोर बनाना दैट शी एट हर सेल्फ। बाद में उसको एक और केला मिल जाता है जो कि वो खुद खा लेती है। वट वर्क डिड शी डू, वो लड़की क्या काम करती थी? वो जो है रैग पिकिंग का काम करती थी। शी वॉज अ रैग पिकर। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, पैराग्राफ है, सॉरी पार्ट है, उसमें हमें क्या पता चलता है कि उनकी जो लिविंग प्लेस थी, जो हर्ट्स थी, वो कैसी जगह पे थी। बहुत ही गंदी बस्तियां थी और बुरी तरीके से जो है उनके घर बने हुए थे, झोपड़े, जो कि हर मटेरियल को यूज़ करके बनाए गए थे, चाहे वो मेटल है, चाहे वो जो है ईंटें हैं, चाहे कुछ भी है, मिट्टी है, इन सब को मिला करके जो है वो रबड़ वगैरह इनसे बनाए गए थे। और वहाँ पर वेलू को पता चलता है कि जया जो है किस तरह से काम करती है। अब हम कॉम्प्रहेंशन चेक की तरफ आते हैं। व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, किस मटेरियल की जो है वो हर्ट्स बनी हुई थी। वाई डिड वेलू फाइंड दैम स्ट्रेंज, वेलू उनको जो है अजीब क्यों पाता है, क्यों लगती है उसको अजीब। द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। He found the huts strange because in his village the houses were made of mud and palm tree leaves. इन हट्स को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज समझता है क्योंकि उसके गांव में जो हट्स थी वो किसकी बनी हुई थी, पाम लीव्स की बनी हुई थी, मिट्टी की बनी हुई थी। और यहाँ पर जो घर थे, जो हट्स थी, वो ऑलमोस्ट सभी मटेरियल्स को बना करके बनी हुई थी। मेटल शीट्स थी, टायर्स, ब्रिक्स, वुड, प्लास्टिक, इन सब को जो है ऐड करके जो है बनाई गई थी। द हट्स वर लुकिंग क्रोक्ड एज दे कुड फॉल एनी मोमेंट, और जो हट्स थी वो ऐसे झुकी हुई थी एक साइड में, जैसे वो किसी भी मोमेंट गिर सकती हैं। What sort of things did Jaya and children like her collect and what did they do with those things? कैसी चीज़ें जो है जया कलेक्ट करती थी, जया और उसके जैसे और बच्चे, और उन चीज़ों से वो क्या करते थे। They collected papers, plastic, glass and other such things. They sold these items to Jam Bazaar Jaggu. ये जो है क्या कलेक्ट करते थे भाई, पेपर्स, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर थिंग्स, और फिर उनको जैम बाजार जग्गू जा कर के बेच देते थे। एंड फर्दर सोल्ड इट टू अ फैक्ट्री, और फिर उसको जो है वो आगे कहाँ पर बेचते थे, एक फैक्ट्री में दे देते थे। इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या वेलू जो है इस काम को पा करके बड़ा खुश था? नो, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस वर्क because he didn't like this work. He wanted to work in the fields, but there were no fields in the city, so he was helpless to do this work. यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे। और वो क्वेश्चंस हमारे क्या हैं। डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर, डिस्क्राइब। क्या आपको लगता है कि जो जया है वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और सेंसिटिव है? आपको जो इसका सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ दिखाई देता है इस चैप्टर में? जया इज़ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विद सेंस ऑफ ह्यूमर। शी वॉज ऑफ वेलूज एज, शी वॉज अ रैग पिकर एंड नोज हाउ टू लिव इन अ सिटी। जया जो है बहुत ही बहादुर लड़की थी और सेंसिटिव भी थी, और बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग भी थी। उसको पता था कि शहर में जो है किस तरह से जीना है, कैसे काम करना है। वो रैग पिकिंग का काम करती थी। शी नोज हर वे अराउंड चेन्नई, उसको जो है चेन्नई के सब रास्तों का पता था। विच इज़ अ फेयरली बिग सिटी, जो कि काफ़ी बड़ा शहर है। शी नोज दैट वन हैज़ टू बी केयरफुल नॉट टू गेट कॉट बाय द पुलिस, उसको पता था कि हर इंसान को जो है, एक इंसान को बड़ा केयरफुली जो है इस शहर में रहना पड़ेगा अगर पुलिस के हाथ नहीं आना है तो। शी इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव एंड काइंड हार्ट गर्ल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और काइंड भी थी, दयालु भी थी। शी हेल्प्स वेलू इन ऑल पॉसिबल वेज, वेलू की जो है हर तरीके से कोशिश करती है कि उसकी सहायता करने की। शी गिव्स हिम अ पेयर ऑफ शूज़, वो उसको एक शूज़ का पेयर देती है। टू प्रोटेक्ट हिज फीट टू बर्न, उसके पैरों को जलने से बचाने के लिए। शी इज़ ऑल्सो वेरी जॉली नेचर्ड, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज भी है।
When she meets Velu first time, she asks him if he is there to become rich. में और जब वो पहली बार रेलू से रेलवे स्टेशन पर मिलती है वेलू से, तो वहाँ पर उसके साथ मजाक करती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर अमीर बनने आए हो। मैनी अदर इंसिडेंट्स आर ऑल्सो गिवन इन द स्टोरी विच टेल अबाउट हर ह्यूमरस स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन। और इस कहानी में और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए गए हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कितनी फ़नी थी, कितने मजाकिया तरीके से जो है वेलू से बात करती है। जब वेलू को जो है वो रोड क्रॉस करवाती है तो उसको बताती है कि अगर तुम यहाँ पर ऐसे ही देखते रहते तो थोड़ी देर में कोई गाड़ी तुम्हारी चटनी बना देती। सो दीज आर द इंसिडेंट्स विच शोज दैट that girl was very humorous, very funny. He felt miserable at the railway station. He accepted rag picking because he was not fit for any other job. यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो आप वेलू इस काम को अपने लिए लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था रेलवे स्टेशन पर, उसके पास अभी और कोई काम नहीं था करने के लिए, इसने जो है रैग पिकिंग का काम एक्सेप्ट कर लिया। What problems do millions of poor children face in India? What basic issue does the story discuss? हमारी इंडिया में मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन जो है इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। This story gives us picture of the children who are bound to work to support not only themselves but also their family and parents, you can say. They cannot go to school, they can't play like other children, so the story draws our attention to the evil of the child labor. हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो कि चाइल्ड लेबर जो है हमें दिखाई देता है, जहाँ क्योंकि वो बच्चे मजबूर हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्कूल फीस दे सकें, बल्कि उनको अपनी आप को बचाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने परिवार की सपोर्ट बनने के लिए जो है खुद काम करना पड़ता है ताकि जो वो अपना 2 टाइम का खाना अवेलेबल करवा सकें। सो इस तरह की प्रॉब्लम हमने जो है मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को हमारे देश में देखा है कि जो इस तरह के काम करते हैं, भले ही वो उन काम को पसंद ना करते हों लेकिन उनको अपनी आजीविका कमाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। सो ये स्टोरी जो है इसी एक मेन पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, चाइल्ड लेबर के ऊपर बेस्ड है। किस तरह से जो है बच्चे मजबूर हैं, किस तरह से हमारा सिस्टम जो है वो इन बच्चों की सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है स्टोरी इसी के बारे में थी जो कि वेलू और उस लड़की जया के थ्रू जो है हमें बताई गई है। So it was all about this chapter. You have to learn the word meanings also. Wobbly, unsteady, pulled in, arrived at, porter, coolie, pumping, pushing, sack, jute bag, snatched, took by force, grimace, twisted expressions on the face due to pain, squinted, glanced sideways, squashy, crushed, gulped down, swallowed, निगलना, crookedly, not straight, thumped, beat, स्क्वेश्ड, रिप्ड विद नेल। तो इस तरह से आपको सभी वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज करना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर you can comment in the comment section. And students, you have to be prepared with your email ID to log in the question paper on 13 June because your English UT is on 13 June. और आपको जो है अपनी ईमेल आईडी जो है वो तैयार रखनी है। विदाउट ईमेल आईडी यू कांट लॉग इन दिस यूटी, सो प्रिपेयर योर ईमेल आईडी। थैंक यू।